Hello students, today we will discuss AC fundamental, that is the AC equation. Clear? You will see this is the N and S, these are the poles and the flux line दिख रहा है आपको कि it is originating from the north pole and the terminating at south pole. Clear? Basically this is the horseshoe magnet. हमने केवल क्या दिखाया है, केवल ये सेक्शन दिखा रखा है. This is the north pole and this is the south pole. Clear? Under the effect of this magnetic field we are rotating a coil. Clear? The coil, it is a rectangular coil having the length L and the breadth B. Clear? Then what is the area of the coil? A is the area of the coil, that will be L into B. Clear? Now you will see when we are rotating with the angular velocity omega. Clear? Then what is the E? That is equal to the minus N d phi by dt. You know the Faraday's law, the induced EMF, it is simply the rate of change of flux. Clear? Now you will see E, that is equal to the minus N d phi by dt. What is the N? N is the number of turns in the coil. Clear? If we are taking a single coil, then what will happen? The E is equal to minus d phi by dt. Clear? Here we are taking the N turns, then E is equal to minus N d phi by dt. Clear? What is the phi? It is the dot product of B and A. What is the B? It is the flux density, and A, it is the area. Clear? And you know that if we see the vector x dot vector y, that is equal to the xy cos theta, and what is the vector x cross vector y, that is equal to the xy sin theta. Clear? So E is equal to minus N d phi by dt. What is the phi? That is the B dot A, and B dot A, it can be written as the BA cos theta. Clear? You know that what is the theta? That is equal to the omega t. Clear? Then E is equal to minus N d upon dt BA cos omega t. Clear? If we differentiate the cos omega t, then what will be this? This is the minus omega sin omega t. Clear? और माइनस माइनस क्या हुआ बच्चों? प्लस हो गया. Then what is the E? That is equal to the NBA omega sin omega t. Clear? और ये जो NBA omega है, what is this? This is the E naught. Clear? तो E is equal to E naught sin omega t. Clear? और एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो एंगल है, it must be in radian. एंगल किसमें होना चाहिए? It must be radian. Clear? यहां पर सिंपल कन्वर्जन है कि 180 डिग्री that is equal to pi radian. That means 1 degree is equal to pi upon 180 radian, और 1 radian is equal to 180 upon pi. ये जो ब्लू से दिखाई दे रहा है, ठीक है. अब ध्यान से देखिए, what is the omega? Omega that is equal to 2 pi f. That means the equation can be written as E is equal to E naught sin 2 pi ft. Clear? और E is equal to E naught sin 2 pi small t upon capital T. And what is the capital T? It is the time period. Clear? And you know that what is the F? That is equal to the 1 upon T. Any doubt? Clear? तो हमारे पास तीन रिप्रेजेंटेशन है. E is equal to E naught sin omega t, E is equal to E naught sin 2 pi ft, and E is equal to E naught sin 2 pi t upon t. Clear? And always remember, keep in mind that capital T, it is the fixed time, it is the time period, time taken to complete one cycle, and this small t, it is the variable time. Clear? अब ध्यान से देखिए, E is equal to E naught sin omega t. अब हमें देखना है कि how you will show that this is the alternating wave. Clear? You will see, for example, what is the rotation? It is like this. Clear?
suppose this is the rotation. Any doubt? Clear? This is the 0. This is the pi by 2. Clear? What is this? This is the pi. This is 3 pi by 2 and this is the 2 pi. Clear? What is the function? E is equal to E naught sine omega t. Clear? तो E is equal to E naught sine omega t. अब मैंने यहां पर ये रेफरेंस ले लिया इसका. Clear? What is this? This is the maximum value. That means this is the maximum value. Clear? And it will be like this. ध्यान से देखिए. When omega t is equal to 0, then what is the E? That is equal to 0. Clear? When omega t that is equal to pi by 2, then what is the E? That is the E naught, because the sine pi by 2 that is equal to 1. So E is equal to E naught. When omega t that is equal to pi, then E is equal to 0. Omega t that is equal to the 3 pi by 2, then E is equal to minus E naught. And the omega t that is equal to 2 pi, then E is equal to 0. Clear? अब प्लॉट करते हैं इसको. ध्यान से देखिए. When the omega t is equal to 0, it will be like this. Say this is the pi by 2. This is pi. This is 3 pi by 2. And what is this? This is the 2 pi. Clear? When the omega t is equal to 0, the value is 0. When omega t is equal to pi by 2, then E is equal to E naught. Clear? यानी कि ये जो वैल्यू क्या है? E naught. Clear? When omega t is equal to pi, then it will be 0. When the omega t is equal to 3 pi by 2, then this is the minus E naught. Clear? Now the curve will be take place like this. ध्यान से देखिए. This is the alternating wave. Clear? This is the positive half and this is the negative half. Clear? So what is the E? That is equal to the E naught sin omega t. It is an alternating waveform. कैसी waveform है? It is the alternating waveform. Clear? For example, if we see sometimes the equation is E is equal to E naught cos omega t. Clear? What is the E? That is equal to the E naught cos omega t. When omega t is equal to 0, then what is the E? That is equal to E naught, because the cos 0 1. ठीक है? Omega t that is equal to the pi by 2. Then what is this? Omega t is equal to pi by 2. Then what is the E? बोलिए 0. When omega t that is equal to pi, then E is equal to minus E naught, because the cos pi that is equal to the minus 1. Omega t that is equal to the 3 pi by 2. Again E will be 0, and the omega t that will be the 2 pi, then E is equal to E naught. Clear? अब मैं इसको जो है ब्लू कलर से जो है प्लॉट कर रहा हूं. ध्यान से देखें. When omega t is equal to 0, it will be like this. When omega t is equal to pi by 2, E is equal to 0, it will be like this. When this is the pi, then this is the minus E naught, and this is 0, and E is equal to E naught, and it will be like this. अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो क्या आएगा बच्चों? ध्यान से देखिए. It will be like this. This is the maximum. This is 0. Clear? And it will be like this. Clear? अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो देखिए यहां पर क्या बन रहा है. ये भी एक वेव आ गया. तो ये कैसी वेव है? ऑल्टरनेटिंग वेव. क्लियर? तो E is equal to E naught cos omega t. It is also an alternating EMF. क्लियर? तो E is equal to E naught sin omega t. ये भी एक ऑल्टरनेटिंग वेव है. और E is equal to E naught cos omega t है. तो ये भी क्या है? ये भी ऑल्टरनेटिंग वेव है.
क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, फॉर एग्जाम्पल E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ध्यान से देखो कि E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्लियर? देन व्हाट इज द E? दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्लियर? तो हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन आता है कि E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्लियर? अगर हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट कॉस ओमेगा टी है तो क्या लिखोगे आप? दैट इज द ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और ऐसा क्यों किया? देखिए साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हुआ? कॉस थीटा। दैट इज द E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट कॉस ओमेगा टी है। दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। व्हेन E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी देन E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है? आप ध्यान से देखें कि व्हाट इज द E? इट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। व्हाट इज द E नॉट? It is the maximum value. And what is the omega t? Omega that is equal to the 2 pi f. और ये जो omega t है it will be always in radian. ठीक है? ध्यान से देखिए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज कोई ऑल्टरनेटिंग वेव फॉर्म है, इसमें हमने दे रखा है कि जो फ्रीक्वेंसी है से 50 हर्ट्ज। क्लियर? एंड द मैक्सिमम वैल्यू से दिस इज द 100 एम्पियर। क्लियर? नाउ वी हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन। अब हमें क्या लिखना है? इक्वेशन। ध्यान से देखिए, यू नो दैट E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? देन व्हाट इज द E? ठीक है, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। ठीक है? अब हमें यहां पर क्या दिया है बेटे? करंट दे रखी है। एम्पियर किसकी यूनिट है? करंट की यूनिट है। देन व्हाट इज दिस? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। क्लियर? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है भाई? 100 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू कितना हुआ? 100 साइन 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। 2 पाई इंटू 50 टी, दैट इज द I, इट इज इक्वल टू द 100 साइन कितना आ गया? दैट इज द 100 पाई टी। यहां तक बात समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये इक्वेशन हो गई। कभी कभी क्या करता है कि F इज इक्वल टू, तो इसने 50 हर्ट्ज दिया। क्लियर? अब ये कहता है कि आरएमएस वैल्यू, यहां पर क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां पर क्या दिया इसने? आरएमएस वैल्यू से दिस इज द 100√2 एम्पियर। क्लियर? अगर आरएमएस वैल्यू 100√2 एम्पियर दे रखा है, देन व्हाट इज द I? दैट इज इक्वल टू द आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। क्लियर? अब देखिए, जो आरएमएस वैल्यू है और यहां पर क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? एंड यू नो दैट द IRMS दैट इज इक्वल टू द I नॉट बाई √2। तो व्हाट इज द I नॉट? दैट इज द IRMS इंटू कितना आ जाएगा? √2। तो मैंने √2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो 100√2 इंटू √2, देन I इज इक्वल टू दैट इज द 200 साइन F की जगह क्या रखना है? 50, दैट इज द 100 पाई टी। दिस इज द I इज इक्वल टू 200 साइन 100 पाई टी। क्लियर? तो हमें जो भी वैल्यू दे रखी है, चाहे वो करंट है या वोल्टेज है, हमको ये देखना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू है। क्लियर? जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो क्या करेंगे? डायरेक्ट वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है? मैक्सिमम। लेकिन यहां पर क्या दिया है? आरएमएस वैल्यू। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? जैसे हमने यहां पे निकाला कि I नॉट
दैट इज इक्वल टू 100√2 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू द 200 एम्पियर। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सपोज ये कहता है कि when I will be 50 एम्पियर, क्लियर, when I will be 50 एम्पियर। अब ध्यान से देखिए कि 50 दैट इज इक्वल टू द 100 साइन 100 पाई टी, क्लियर। अब ध्यान से देखिए कि 50 से ये कटा 2 तो कितना आ गया, दैट इज द 100 साइन 100 पाई टी दैट इज इक्वल टू 1/2, क्लियर। अब ध्यान से देखो बेटा कि ये साइन 100 पाई टी दैट इज इक्वल टू 1/2 है, और 1/2 कितना है, दैट इज द साइन 30 डिग्री, क्लियर। अब ध्यान से देखिए 100 पाई टी दैट इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू है, इट इज इक्वल टू साइन 30। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो कितना आएगा, दैट इज द 100 पाई टी दैट इज इक्वल टू द 30 डिग्री, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए कि जो 30 डिग्री है ये किसमें है बेटे, ये तो है रेडियन में, किसमें है, रेडियन में, क्लियर, और ये किसमें है, डिग्री में, ठीक है। तो हमारे पास एक तरीका था कि हम कैलकुलेटर से ही पहले डिग्री से रेडियन में जाते, क्लियर। लेकिन ये क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर एक बार आपने डिग्री से रेडियन में चले गए या रेडियन से डिग्री में चले गए तो कई बार एग्जाम में ये ध्यान नहीं रहता कि हमारा कैलकुलेटर डिग्री पे चल रहा है या रेडियन पे चल रहा है, क्लियर। तो आप इसको डिग्री पे ही रहने दें, और ये 30 डिग्री आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको रेडियन में चेंज करना है, क्लियर। अब ध्यान से देखिए 30 डिग्री, क्लियर। अब आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन, क्लियर। तो दैट इज इक्वल टू द 30 इंटू कितना आ गया, पाई अपॉन 180, क्लियर। तो 30 से गया ये 6 आ गया, तो कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू द π/6, क्लियर। तो 100 पाई टी दैट इज इक्वल टू π/6, पाई is cancelled with this, clear. Then what is the t, that is equal to the 1/600 second, clear. What is the t, that is equal to the 1/600 second, clear. जनरली क्या होता है कि हम जैसे साइन 30 है, अब हमें पता है कि साइन 30 की वैल्यू π/6 है, तो हम क्या मानते हैं कि जो 30 डिग्री है और ये क्या है π/6, तो ये डिग्री में है और ये रेडियन में है, क्लियर। तो आप ये कर गलती मत करिएगा, नहीं तो क्या होगा, आंसर हमारा सारा का सारा गलत हो जाएगा। देखिए अगर मैं यहां पर कर दूं कि साइन 100 पाई टी दैट इज इक्वल टू साइन 30, अब मैंने जल्दी में क्या किया, साइन 100 पाई टी दैट इज इक्वल टू द साइन 30, तो 100 पाई टी दैट इज इक्वल टू 30, क्लियर। देन व्हाट इज द टी, दैट इज इक्वल टू 30 अपॉन 100 पाई, क्लियर। दैट इज द, देखिए ये दोनों एक है क्या, क्लियर। तो ये जो गलती हुई है ये किस वजह से हुई, क्योंकि हमने ये तो रेडियन में था, ये किस में था, डिग्री में, तो हमने यहां पर डिग्री को रेडियन में चेंज नहीं किया, क्लियर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस रेडियन इनटू दिस डिग्री इनटू रेडियन। समझ में आ रहा है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखें, इसी क्वेश्चन में देखते हैं, देखें कि आफ्टर 1/200 second, 1/200 second, what will be the value of current, clear। इक्वेशन हमने यही ले रखी है, I इज इक्वल टू क्या इक्वेशन, I इज इक्वल टू 100 साइन 100 पाई टी, क्लियर। अब ध्यान से देखो भाई, दैट इज इक्वल टू 100 साइन 100 पाई, और टी कितना है 1/200,
200. क्लियर? तो साइन 100 पाई 1/200. क्लियर? तो 100 से ये कटा, तो दैट इज इक्वल टू द 100 साइन पाई बाई 2. क्लियर? एंड दिस पाई बाई 2, it is in radian, because when you convert into the degree, it will be the 90 degree. Clear? So that is the 100 sine 90 degree. That is equal to the 100 into 1, that is equal to the 100 एम्पियर. क्लियर? यानी कि 1/200 सेकेंड के बाद इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 1/100. क्लियर? सॉरी, 100 एम्पियर. क्लियर है? तो आपको इन क्वेश्चंस में करने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि वी हैव टू चेक द डिग्री एंड रेडियन. क्लियर? जो हमारा डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन है ये बिल्कुल सही होना चाहिए. ठीक है? अब देखिए, जैसे इसने कहा कि I इज इक्वल टू 100 साइन 100 पाई टी. क्लियर? और ये कहता है कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू. क्लियर? व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू? दैट इज द I0 अपॉन √2, that is equal to the 100 upon √2. Clear? That is equal to the 100. 1 upon √2 कितना होता है बेटा? 0.707. Clear? So that is equal to the 70.7 एम्पियर. अगर ये पूछता है कि what is the average value? Clear? तो average value कितना होता है? That is the 2I0 upon pi, or you can say 0.637 I0. तो 0.637 into 100, that is equal to the 63.7 एम्पियर. क्लियर? दिस इज द 63.7 एम्पियर. क्लियर? इस टाइप का जो एक क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में जरूर आना है. ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो इस टाइप का एक क्वेश्चन है ये जरूर आएगा, और यहां पर हमें ये डिग्री और रेडियन का बहुत बहुत ध्यान रखना है. ठीक है? एक छोटी सी चीज हम और डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखें. ध्यान से देखिए. सपोज दिस इज ए वेक्टर v इज इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी. क्लियर? अब मैं मूव कर रहा हूं कैसे? एंटी क्लॉकवाइज. कैसे मूव किया मैंने? एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर? सपोज दिस इज द ओमेगा टी. ये क्या है बेटे? ओमेगा टी. क्लियर? ये v इज इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी है. यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमने उठा लिया, यानी कि लेंथ ऑफ द वेक्टर आइदर इट विल बी मैक्सिमम वैल्यू और इट विल बी आरएमएस वैल्यू. ठीक है? आप इसमें आरएमएस वैल्यू वैल्यू भी ले सकते हैं. ठीक है? अब देखिए, सपोज दिस इज द v इज इक्वल टू v1 साइन ओमेगा टी. अब मैंने क्या कहा कि इसको मैंने अल्फा कर दिया. क्लियर? अब आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रोटेक्टर होता है उसमें हम एंगल कैसे पढ़ते हैं? ध्यान से देखिए. 0, then 30, then 60, then 90, 120, 150 and 150, यानी कि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं. तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा? साइन ओमेगा टी प्लस कितना आ जाएगा? अल्फा. क्लियर है? तो अगर ये देखें तो ये v बराबर कितना है? v1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. क्लियर? अब मैं दूसरे तरीके से देखता हूं. ध्यान से देखिए. दिस इज द ओमेगा टी. v इज इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी. क्लियर? अब मैंने क्या करा? अब मैं इस तरीके से गया. क्लियर? यानी कि बीटा. अब हम कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज. जैसे ही हम क्लॉकवाइज होंगे तो एंगल कैसा हो जाएगा? इट विल बिकम नेगेटिव. क्लियर? एंड दिस विल बी द v. सपोज दिस इज द v इज इक्वल टू v2 साइन ओमेगा टी माइनस बीटा. दिस विल बी द वोल्टेज. क्लियर? तो जब क्लॉकवाइज आते हैं तो एंगल कैसा होता है? पॉजिटिव. और जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल कैसा होगा? नेगेटिव. अब देखिए, ये तो हमारे पास v1 है. क्लियर है? और ये क्या बेटे? ये सपोज v है. क्लियर? अब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, इसको भी और इसको भी. ठीक है? ध्यान से देखिए. v1
आगे चल रहा है, तो क्या होगा, V1 will lead the V2, V1 will lead the V2। क्लियर है। और यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर V पीछे चल रहा है, V आगे चल रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, V will lead the V2। कहीं कोई दिक्कत? क्लियर। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है कि लैग और लीड किस तरीके से हम देखेंगे। क्लियर। आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, दैट इज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। क्लियर। सपोज द V1 इज इक्वल टू द tan sin omega t, V2 say this is the tan root 2, clear, sin omega t minus pi by 4, clear, and the V3 say this is the 20 cos omega t, clear। अब हमें क्या करना है, we have to find the V1 plus V2 plus V3। अब ध्यान से देखो बच्चों, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। क्लियर। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो भी तीनों में कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है। जैसे ये साइन है, ये साइन है और ये कॉस है, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था कि देखिए कि V1 that is equal to tan sin omega t, then what is the V3 that is equal to the 20 sin omega t plus pi by 2। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि जो ओमेगा टी है बेटे ये रेफरेंस में है। ठीक है। हम चाहते तो क्या करते कि सबसे पहले मैंने ओमेगा टी को ड्रॉ किया, ओमेगा टी रेफरेंस, तो ये क्या हुआ बेटे, दिस इज द V1 दैट इज इक्वल टू 10, V2 कितना है, tan रूट 2 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4। अब देखिए माइनस पाई बाई 4 तो क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ये एंगल कितना है, दिस इज द पाई बाई 4 एंड दिस इज द tan रूट 2। क्लियर। मैक्सिमम वैल्यू। और V3 कितना था, 20 cos ओमेगा टी, और हमने क्या कर दिया, 20 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्लियर। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो ये इस तरीके से आया। ध्यान से देखिए, दिस इज द V3 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 20। क्लियर। अब हमने क्या करा, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी tan रूट 2 cos pi by 4 and what is this, this is the tan रूट 2 sin pi by 4। क्लियर। अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूं तो व्हाट इज द VH दैट इज इक्वल टू V1 tan, ये कितना हो जाएगा, दैट इज द tan रूट 2 cos pi by 4। क्लियर। दैट इज द tan प्लस कितना आ रहा है, tan रूट 2 tan रूट 2 cos pi by 4 कितना है, 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू द tan प्लस tan दैट इज इक्वल टू 20। क्लियर। नाउ वी विल सी VH वर्टिकल कंपोनेंट, V3 ऊपर है पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू द 20 माइनस कितना आ जाएगा, tan रूट 2 साइन पाई बाई 4। क्लियर। दैट इज इक्वल टू द 20 माइनस tan रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू द 10। क्लियर। अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। देन व्हाट इज द रिजल्टेंट, दैट इज द VH। क्लियर है। तो V रिजल्टेंट, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू VR इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज द VH स्क्वायर प्लस VV स्क्वायर। अब देखिए व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, 20। क्लियर। दैट इज इक्वल टू द 20 स्क्वायर। व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट, 10, दैट इज द 10 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ 500।
क्लियर? 500, 400 प्लस 100 अंडर रूट 500, क्लियर? एंड व्हाट इज द थीटा? दैट इज इक्वल टू द tan इनवर्स, कितना आ जाएगा? वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज द थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स VV, वर्टिकल कितना था? 10 अपॉन 20, क्लियर? कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। सपोज वैल्यू कितनी आ रही है बेटे? थीटा। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू राइट द इक्वेशन, रिजल्टेंट की इक्वेशन क्या होगी? दैट इज द वी आर, मैक्सिमम कितना निकाला था बेटा हमने? 10 निकाला था ना, तो कितना आ जाएगा? v इज इक्वल टू कितना आ रहा था? वी आर वी अंडर रूट 500, क्लियर? साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होगी? जो सबकी थी, ओमेगा टी कैसा होना है? हमेशा पॉजिटिव, तो ओमेगा टी प्लस कितना आ जाएगा? दैट इज द थीटा, क्लियर? अगर यहां पर ये माइनस आएगा तो यहां पर ये माइनस आ जाएगा, ठीक है? अब देखो बच्चों, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अब हमने ये तरीका को एडॉप्ट किया, क्लियर? अब यहां पर देखिए, हमने वेक्टर को क्या करना है? खोलना है, फिर इसको रिजॉल्व करना है, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, इन सबको क्या करना है? हमें कलेक्ट करना है, देन वी आर फाइंडिंग द वैल्यू, क्लियर? अब ध्यान से देखिए, हम कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रा यूज करें तो देखो कितनी चीजें आसान हो जाएंगी। अब ये कितना है? tan sin ओमेगा टी प्लस 0 कर दीजिए, ठीक है? अब ध्यान से देखें, कैसे लिखेंगे? tan cos 0 डिग्री प्लस j, ये क्या आ रहा है? ये V1 है, tan cos एंगल प्लस इमेजिनरी j, दैट इज द tan sin 0, ठीक है? 0 और ये 0, अब ये कितना है बेटा? sin 0 0 और cos 0 1, तो कितना आ गया? tan प्लस j0, क्लियर? इसी तरह से V2 देखिए, व्हाट इज द V2? दैट इज द tan रूट 2, tan रूट 2 cos पाई बाई 4। अब ध्यान से देखो, यहां पर ये माइनस पाई बाई 4 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस j, क्लियर? तो माइनस j tan रूट 2 साइन पाई बाई 4, क्लियर? cos पाई बाई 4 कितना होता है? बोलिए, 1 बाई रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? दैट इज द tan माइनस j tan, क्लियर? एंड व्हाट इज द V3? दैट इज इक्वल टू द 20, क्लियर? cos पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 प्लस, यहां पर साइन कैसा है? प्लस, तो ये कितना हुआ? प्लस हो गया j, क्लियर? दैट इज इक्वल टू द 20 साइन पाई बाई 2। अब देखिए, cos पाई बाई 2 कितना होता है? 0, तो यहां पर कितना हुआ? 0 प्लस साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1, तो कितना आ गया? प्लस j20। अब मुझे क्या करना था? V1 प्लस V2 प्लस V3, तो मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा। 10 प्लस 10 कितना आ गया? 20, क्लियर? और यहां पर कितना आ रहा है? 20 प्लस j10, यही आया ना? अब देखिए, यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ रहा था? 20, यानी कि जो कोसाइन कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, और जो साइन है वो कैसा कंपोनेंट है? वो वर्टिकल है, क्लियर? जब 20 प्लस j0 आ गया, तो आपको ये पता है कि कॉम्प्लेक्स में अगर a प्लस आई बी है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? दैट इज द अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है? एंड व्हाट इज द आर्गुमेंट? दैट इज इक्वल टू द tan इनवर्स b अपॉन a, ठीक है? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें V1 प्लस V2 माइनस V3 निकालना होता, तो हम क्या करते? V1 रखते, V2 रखा, V3, और V3 को रिवर्स कर देते, यानी कि माइनस कर देते, तो यहां पर कितना था? माइनस, और ये माइनस हो जाता और हमारा काम बन जाता, क्लियर? अब देखो बच्चों, सपोज ये भी हो सकता था कि V3 इज इक्वल टू कितना हो रहा है? ये ध्यान से देखिए, से V3 that is equal to the minus 20 cos ओमेगा टी, क्लियर? तो जब ये minus 20 cos ओमेगा टी होगा, तो क्या करोगे? V3 is equal to 20 sin
ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तब ये वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब क्या चेंज होता है यहां पर 20 cos पाई बाई 2 और यहां पर माइनस साइन है तो यहां पर ये माइनस हो जाता है, तब आप इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो तरीका है हमारा कॉम्प्लेक्स वाला, ये थोड़ा आसान पड़ता है और इसमें थोड़ा गलती होने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी कम होती है। इसको हम क्या कर सकते हैं कि 3 वेक्टर है, 4 है, 5 है, 6 है, सबको आपने क्या करा, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करा, क्लियर, और उसके बाद जो आपने इसको सॉल्व कर लिया। समझ में आ रहा है? तो ये जो कॉम्प्लेक्स का मेथड है ये वेक्टर मेथड से थोड़ा आसान है, लेकिन हमको ये वाला मेथड भी आना चाहिए। क्लियर? तो ये जो आज हमने पूरा पढ़ा ये क्या था, ये एसी फंडामेंटल की स्टार्टिंग थी। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर जब होगा हमारा तब हम उसमें क्या शुरू करेंगे, वी विल स्टार्ट द प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी, आर एल, आर सी, RLC. There are many more lecture to complete this AC fundamental. Clear? If you have any doubt, you can ask me on my email. Clear? We will discuss on the board or you can contact me. Thank you.